Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine and safe at home. Welcome to our online education. Myself Sengundar Sulakshna and I will be teaching you SPCC. So students, today we are here to see standard 11th SPCC chapter number 2 from part 1. Effective way of writing letter and the types of various way of writing a letter. So this chapter we have started up. As you all know, we have already seen one part of this chapter. So today we are here to see the part 2 of the chapter. So students, now let us move on with the short summarization of the topic that we have seen on the previous video. So previously what we have seen? So previously we have seen the introduction and the history of the effective letter writing and the characteristic of the letter writing in a very detailed manner. So let us have a short revision. What is the introduction? If you are seeing the introduction, in that we have seen that whatever portion that we have seen, that in the modern mean of communication and the way of communication, the portion of media and the modes of communication presently we are using is so much effective and speedy, but still if you are seeing there are so many ancient way of mean of communication still we are using. In that particularly people mostly in business rely on letter writing, while letter writing is on a written manner. So if you are seeing letter writing is a portion in which we are seeing that the portion is being believed and relied by the public. Why? Because it is on a written form, and you know that in the first chapter we have seen whatever the portion is on written manner, that is being considered as an proof. That's why the people believe on the letter writing very much. Rather than that, with the mean of the modern communication and the portion of the modern communication, people can effectively pass the information with each other and have a good response of the effective communications with each other. So after that we have seen the history of letter writing. So still we can say that the importance of the letter writing has been seen up in the today's generation also. So after that, if you are seeing the history of the letter writing, as in the ancient time, if you are seeing, the people or the king were been doing the communication, the letter writing communication by using the pigeon, and even several soldiers were being sent to one country to another country or one state to another state for passing the information or by the letter writing. So in the history time, if you are seeing in the time of the king, when the pigeons were used for the communication as a transportation or mode of medium of communication, at that motion, that at that time we can say that the letter writing was being done on a leaf. First of all, it started with leaf. Slowly people started to write on cloth, and then the paper came and they started to write on the paper. So in this manner, the letter writing can be said it is from the ancient time of India. After that, the British rule came. So during the British rule, they saw the importance of the communication and the portion of effective communication, though they have established the post and the telegram department. So in that portion, the letter writing got more effective and the people started to do the letter writing day by day in a very effective manner. So in this manner, even the India has established slowly after the telegram and the post, even they have given the telephone and telegram by which they have started to use the mean of mode of communication in a very better manner. But still the people were using the letter writing. By the use of the telephone also, the existence of the letter writing didn't vanished, and slowly you know that the development of the Indian post have been started up, and the courier system also started up by which the speed post can be done to the people. Due to that, which whenever some urgency is being seen, at that time the information can be passed up in a very urgent manner. For that portion, you can say that the speed post were being started up. Once the speed post was being started up, the courier and the Angadiya services also started up. So as this all things started, slowly the letter writing become more effective, because it was a very economical and simple way of reasonable way of communication. So after that, we have seen that in a very detailed manner. So once this all being were going on, at that time the internet facility was being started up. The internet's existence did not banish the letter writing, but it gave a new method of letter writing, which is considered as the email writing. So in this manner we have seen the history of the letter writing. After that, we have seen the
characteristic of a letter writing. So what are the characteristic? We have seen the characteristic in a very 10 way. So in that we have seen that whenever we are writing a letter, you know that in the business sector or in the every portion, the letter writing is considered as the reliable portion. Why? Because it is on the written manner and we need words and portions to write the letter in a very proper manner. So what is the proper way of writing the letter? What are the characteristic of the letter? That we have seen in a very detailed manner. In that we have seen the letter writing is always simple and reasonable method of communication. It can be done in at any place and time. Rather than that, it is very easy to send and receive. The receiver and the writer both gets the important information. Letter writing can be kept as confidential matter. Rather than that, if you are seeing due to the speed post and everything, the letter writing can be given up in a very speediest effective method. Even in business, it is considered as the important factor because it is in written manner, so we can use it re-refer it, use again, or re-refer means again we can use it in a very effective manner. So in this manner we have seen 10 points of the effective letter writing, which means we can say that it is the characteristic of the letter writing. So until this we have seen on the previous video. So today we are going to see the further portion of the chapter. So let us move on with the further portion of the chapter in a very detailed manner in the further video. So students, now let us move on with the further portion of the chapter, types of letter writing. So last time we have seen the characteristic of letter of writing. So today we are going to see the types of letter writing. So I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. So letters are written with many objectives. Letter written for business, administration or for government matters are called formal letters. The letters written for social matters and to maintain relations are called informal letters. Formal letters have their own specific and format to be maintained, whereas it is not necessary to have a format for informal letters. Types of letter writing can be expanded clearly through the following table. So letter writing के लिए हमें हमेशा हम जब भी लेटर को लिखते हैं तो हमारी बहुत सारी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. हम लेटर्स क्यों लिखते हैं? या तो बिजनेस के लिए लिखते हैं या गवर्नमेंट मैटर के लिए लिखते हैं, जैसे कोई कंप्लेन करना गवर्नमेंट में इसलिए, या कोई एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे लिखते हैं. तो ये सारे लेटर्स जो हम लीगली किसी को लिख रहे हैं, कुछ इन्फॉर्म करने या कंप्लेन करने या रिक्वेस्ट करने, उसे फॉर्मल लेटर बोला जाता है. स्पेसिफिकली अगर हम सोशल मैटर पे कोई लेटर लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम हमारे फ्रेंड को लिखते हैं, फैमिली को लिखते हैं, कोई रिलेशन मेंटेन करने के लिए हम लेटर लिखते हैं, तो उसे इनफॉर्मल लेटर माना जाता है. सो इनफॉर्मल लेटर का एक अपना जो पोर्शन होता है, वैसा एक फॉर्मेट जो बोला जाता है वो कभी नहीं होता है. बट फॉर्मल जो लेटर होते हैं उसके फॉर्मेट होते हैं और नेसेसरीली उस फॉर्मेट को हमें फॉलो अप करना पड़ता है. सो टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग को और क्लियरली समझने के लिए नीचे हमें एक टाइप दिया गया, टेबल चार्ट दिया गया. सो लेट अस सी दैट इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर. सो टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग. सो टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग में दो टाइप ऑफ लेटर राइटिंग देखा जाता है. वन इज फॉर्मल, सेकंड इज इनफॉर्मल. इनफॉर्मल की अगर हम बात करते हैं, लेटर ऑफ ग्रीटिंग, किसी को बर्थडे विश करना, किसी की कुछ विश हमको, जैसे कि उनकी शादी की सालगिरह एनिवर्सरी है तो विश कर रहे हैं, बर्थडे है तो विश कर रहे हैं, उन्होंने नया घर लिया तो विश कर रहे हैं. सो ग्रीटिंग करने के लिए. कंडोलेंस, कंडोलेंस मतलब अगर हमें ऐसा लगता है कि उनके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कुछ दुख है, तो बीमार है तो उसको गेट वेल सून का लेटर लिखते हैं. कोई ऑफ हो गया तो उसको एक कंडोलेंस देते हैं, अच्छा ठीक है होता है, बी गुड हैप्पी, इस तरीके से कंडोलेंस का लेटर. कॉन्ग्रेचुलेशंस, जैसे मैंने बोला नया गाड़ी लिया है, पास किया है, कुछ अच्छा हुआ है तो उसकी कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखते हैं. इन्विटेशन, हमारे घर पे एक बर्थडे है, हमारे घर पे कोई फंक्शन है तो उसके लिए इन्विटेशन के लिए इनफॉर्मल लेटर, यानी हमारे सगे संबंधी को, हमारे फ्रेंड्स को जो हम लेटर लिखते हैं उसे इनफॉर्मल लेटर माना जाता है. सेकेंड इज फॉर्मल लेटर, यानी फर्स्ट ही फॉर्मल लेटर है. इंपॉर्टेंटली इस चैप्टर के अंदर हम फॉर्मल लेटर को ही देखने वाले. इनफॉर्मल लेटर जस्ट एक नॉर्मली दिया गया है. फॉर्मल लेटर की बात करें तो दो टाइप का फॉर्मल लेटर देखा जाता है. वन इज बिजनेस लेटर, सेकेंड इज ऑफिशियल लेटर. बिजनेस लेटर की बात करते हैं, लेटर रिटन विद द पर्पस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड एक्सपेंडिंग बिजनेस. जो भी लेटर हमने इस पर्पस से लिखा कि बिजनेस की एडवर्टाइजमेंट हो और बिजनेस को बड़ा किया जाए, तो उसे कहीं ना कहीं बिजनेस लेटर बोला जाता है. लेटर ऑफ इंक्वायरी, जैसे हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है हमारे बिजनेस के लिए, तो हम लेटर इंक्वायरी की करते हैं कि आपका रॉ मटेरियल का भाव क्या है, कितने में दोगे, लास्ट कितना कोटेशन होगा. लेटर ऑफ ऑर्डर, हम ऑर्डर करते हैं कुछ चीज़ों का अपने बिजनेस के लिए, दैट इज लेटर ऑफ ऑर्डर. लेटर ऑफ एजेंसी, जैसे हमने कोई एजेंसी बुक करवाया तो उस एजेंसी की हम कोई लेटर देते हैं, कोई कंप्लेंट होता है, कोई रिक्वेस्ट होता है, तो इस तरीके से कोई एजेंसी को हम जो लेटर लिखते हैं तो वो लेटर ऑफ एजेंसी माना जाता है. ये तो हुए बिजनेस लेटर. व्हाट इज ऑफिशियल लेटर?
लेटर्स रिटर्न टू द इंस्टीट्यूशन रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर, जैसे हम कोई इंस्टीट्यूशनों को लेटर लिखते हैं बट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर के ऊपर, तो उस लेटर को ऑफिशियल लेटर माना जाता है। जैसे एप्लीकेशन देना, ठीक है, हमारे यहाँ गटर भरा गया, ये हो गया, ये हो गया, रोड सही नहीं है, तो वो एप्लीकेशन होता है। लेटर रिगार्डिंग रेशन कार्ड, जैसे हमें रेशन कार्ड रिन्यू करवाना है, हमारे रेशन कार्ड में नेम का मिस्टेक है, कुछ है, सो वो एक लेटर हम उनको लिखते तो एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिशियल लेवल में माना जाता है। वाटर प्रॉब्लम, ठीक है, इन शॉर्ट आप गवर्नमेंट को कोई भी कंप्लेंट या रिक्वेस्ट करते हुए कोई भी एक एप्लीकेशन के रूप में जो लेटर लिखते हो उसे ऑफिशियल लेटर माना जा सकता है। तो इस तरीके का फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर होते हैं। फॉर्मल के अंदर बिजनेस एंड ऑफिशियल देखा जाता है, बट इस चैप्टर के अंदर हम जो है बिजनेस लेटर के बारे में डिटेयली देखने वाले। सो आई एम गोइंग टू रीड द मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर, लिसन इट आउट केयरफुली। Where there is an exchange of information between one individual and other, between two institutions or between individual and institution through letter writing, it is known as correspondence. When this correspondence is carried out for the business purpose, it is called business correspondence. Business transaction, understanding of contract, promotion of the product, sales, advertisement, business negotiation, grievance, compromise and adjustment, etc. are covered in business correspondence. Certain specific terms are used in business correspondence. Its vocabulary is different. So we can say that communication that takes place with the purpose of business in a proper format and having specific vocabulary is known as commercial communication. हमें कभी भी एक इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के बीच में या दो इंस्टीट्यूशन के बीच में, जैसे कि एबीसी कंपनी और XYZ कंपनी के बीच में कोई हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, या मैं इंडिविजुअल हूँ बट मुझे किसी इंस्टीट्यूशन को कुछ बोलना है, तो हम किसके थ्रू कर सकते हैं? तो लेटर राइटिंग के थ्रू कर सकते हैं। और ये जो लेटर राइटिंग के थ्रू हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन को, इसे क्या बोला जाता है? तो इसे करस्पॉन्डेंस बोला जाता है। जब भी करस्पॉन्डेंस देखा जाता है तो क्यों देखा जाता है? हम बिजनेस पर्पस से ही करस्पॉन्डेंस करते हैं, यानी कोई भी करस्पॉन्डेंस, कोई भी लेटर राइटिंग का कम्युनिकेशन जो करस्पॉन्डेंस हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के लिए करते हैं या बिजनेस पर्पस से करते हैं, तो उसे बिजनेस करस्पॉन्डेंस बोला जाता है। जैसे बिजनेस का ट्रांजैक्शन के रिलेटेड करस्पॉन्डेंस हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को अंडरस्टैंड, जैसे हमने हमारा एबीसी कंपनी हमने XYZ कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और जानने के लिए हम लेटर राइटिंग से बात कर सकते हैं। हमारी प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट की सेल के लिए कर सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट के लिए कर सकते हैं, बिजनेस में नेगोशिएशन भावतोल करने के लिए कर सकते हैं। जैसे हमें रॉ मटेरियल खरीदना है, वो 1000 रुपीज पर मटेरियल बोल रहा है और मुझे वो 800 में चाहिए, तो नेगोशिएशन के लिए मैं लेटर लिख सकती हूँ। ग्रीवियंस, अगर हमें कुछ प्रॉब्लम हुआ, हमारा कोई कंप्लेंट है तो उसके लिए हम कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, ओके, आपका रेट हमें नहीं सेट हो रहा, हमारा ये रेट है, तो हम दोनों के बीच में मिलके एक रेट कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। एडजस्टमेंट, कभी कभी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, उसका एडजस्टमेंट करने के लिए करस्पॉन्डेंस देखा जाता है। इस तरीके से बिजनेस करस्पॉन्डेंस के अंदर ये सारी टॉपिक को कवर किया जाता है। सर्टेन स्पेसिफिक रेट जो है बिजनेस करस्पॉन्डेंस में देखा जाता है, यानी पर्टिकुलर टर्म्स जो है हम कहीं ना कहीं बिजनेस करस्पॉन्डेंस के अंदर देखते हैं। इवन इसका जो वोकेबलरी होता है वो थोड़ा डिफरेंट देखा जाता है, डिफरेंट तरीके से इसका वोकेबलरी देखा जाता है। वी कैन से दैट कि ये जो कम्युनिकेशन है ये कहीं ना कहीं तभी प्लेस लेता है जब पर्पस ऑफ बिजनेस देखा जाता हो। इन प्रॉपर फॉर्मेट अगर हम बात करते हैं, स्पेसिफिक वोकेबलरी यानी एक पर्टिकुलर वे ऑफ टॉकिंग, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में जब हम चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो उसे कमर्शियल कम्युनिकेशन माना जाता है, यानी बिजनेस कम्युनिकेशन माना जाता है। तो यहाँ खत्म होता है द मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर। नेक्स्ट इज importance of business letter. So let us see that in a very important manner. So students, I am going to read the importance of business letter. Listen it out carefully. Business is one of the important pillar of the financial assets of any company. It is also meaning to obtain employment and income for people. The trend of business keeps on changing, and in the changing trend, one has to be in touch with customers related to business, manufacturer, distributor, firm, institution, government and its machinery to survive in business. And for the development of business, business letter plays a vital role in developing and spreading business by being a constant touch and reading mind of people. Business
letter works as a salesman and boosts the business activity. They create prestige and good image by giving information to customer regarding the product. There is no exaggerations if we say that business letter are the most simple and economical and effective medium of advertisement for any business firm. Briefly, we can say that business letter is an inseparable part of business एक्टिविटी. सो बिजनेस की अगर हम बात करते हैं, आपको पता है कोई भी कंपनी का फाइनेंशियल एसेट इंपॉर्टेंट पिलर माना जाता है. सो बिजनेस यानी एक ऐसा इंपॉर्टेंट पिलर जो फाइनेंशियल एसेट होता है कोई भी कंपनी का. इसीलिए यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, इनकम मिलता है, लोग जो बिजनेस के साथ या एज एन एम्प्लॉय वहाँ पे एसोसिएटेड होते हैं. सो बिजनेस का ट्रेंड को दिमाग में रखते हुए उसमें जो चेंजेस आता है, ये सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए हमें कहीं ना कहीं चेंजिंग ट्रेंड के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है. जो ट्रेंड चेंज होता है उसके साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है. इवन इसमें जो बिजनेस के मैन्युफैक्चर होते हैं उनको भी इसमें कस्टमर के साथ टच में रहना पड़ता है ताकि उनको पता चले कि कस्टमर्स को क्या चीज़ें कैसे अभी पसंद आ रहा है. सो बिजनेस में मैन्युफैक्चरर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, फर्म हो, इंस्टीट्यूशन हो, गवर्नमेंट हो, इवन मशीनरी हो, बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए ये सारी चीज़ों को इम्पोर्टेंटली देखा जाता है और बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए ये सारी फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है. बिजनेस में जो लेटर है ये बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है बिजनेस को डेवलप करने के लिए और बिजनेस में एक कांस्टेंट टच लोगों के साथ रहने में, कांस्टेंट लोगों के दिमाग में रहने के लिए लेटर्स कहीं ना कहीं हेल्प आउट करता है. बिजनेस लेटर की अगर हम बात करें तो ये एक सेल्समैन का भी काम करता है. ये बिजनेस एक्टिविटी को बूस्ट करता है. जैसे लोगों के बीच में बिजनेस लेटर, जैसे रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, ये करने के लिए बार बार उनको याद रहता है कि ये बिजनेस भी चल रहा है. यहाँ पे कोई एग्जावेशंस नहीं होता. हम ये बोल सकते हैं कि बिजनेस लेटर्स जो होते हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, इसमें बहुत बड़ा चढ़ा के कोई चीज लिखा नहीं जाता है. इकोनॉमिकली ये चीज जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है. एज अ मीडियम ऑफ एडवर्टाइजमेंट बिजनेस फॉर्म के लिए यूज किया जाता है. कांस्टेंट टच में लोगों के साथ रहने के लिए, लोगों का दिमाग को रीड करने के लिए, इवन बिजनेस लेटर का जो है क्रेडिट क्रिएट करता है बिजनेस के लिए और बिजनेस का एक नया इमेज और प्रोडक्ट का एक नया इमेज कहीं ना कहीं बिजनेस लेटर के थ्रू क्रिएट किया जाता है. सो हम ये बोल सकते हैं कोई भी बिजनेस एक्टिविटी हो उसमें से बिजनेस लेटर को हम कभी इनसेपरेबल यानी कभी अलग नहीं कर सकते. दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं ये माना जाता है. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट? जब इतना इंपॉर्टेंट है बिजनेस लेटर तो उसको इफेक्टिवली कैसे हम लिख सकते हैं? सो इफेक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डेंस, इफेक्टिव बिजनेस लेटर राइटिंग के बारे में यहाँ एक पैराग्राफ दिया है. आई एम गोइंग टू रीड इट आउट, लिसन इट आउट केयरफुली. Business correspondence is an important tool for business activity. It is developed and growth. That is why business correspondence should be effective. If our letter serves the motive of our business, then only it can called effective business correspondence. The communication through letter which increase the sales of the product develops long-term relations with customers, being collections from the clients, removes misunderstanding that prevails among customers and create positive image of the business firm effectively is called effective business correspondence. Effective business correspondence is result oriented and is written with a specific purpose. That is why it can be drafted carefully. The effective business letter should be contain the characteristic of effective business करस्पॉन्डेंस. सो कोई भी बिजनेस करस्पॉन्डेंस, बिजनेस के रिलेटेड जब भी हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जो हमारा टूल है बिजनेस एक्टिविटी का वो बिजनेस करस्पॉन्डेंस माना जाता है. क्योंकि वो बिजनेस को ग्रोथ और डेवलपमेंट देता है. इसीलिए बिजनेस करस्पॉन्डेंस को कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव, यानी कोई भी उसको पढ़े तो उसको बिजनेस के रिलेटेड यानी उस पर्टिकुलर कंपनी के रिलेटेड एक अच्छा इमेज क्रिएट होना चाहिए. हम कभी भी बिजनेस के अंदर जो लेटर लिखते हैं वो लेटर हमेशा कोई ना कोई मोटिव से लिखते हैं. सो मोटिव इन द सेंस हमारा बिजनेस का मोटिव क्या है? हमारे बिजनेस को डेवलप करना. हर एक बिजनेसमैन का एक ही मोटिव होता है, बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा करना और उसको डेवलप करना, बट अच्छे नाम के साथ. तो लेटर तभी इफेक्टिव माना जाता है जब मोटिव हमारा दिखे उनको, यानी बिजनेस को डेवलप करना हमारा मोटिव है, ये उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए. सो कम्युनिकेशन हम जब भी लेटर के थ्रू रखते हैं तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करें और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप उस कस्टमर के साथ रख पाए, कलेक्शन क्लाइंट से मिल पाए और इवन मिसअंडरस्टैंडिंग अगर कोई हमारे कस्टमर्स के साथ हमारा है तो वो
हट जाए और एक पॉजिटिव इमेज बिजनेस का बन पाए, ये सारी चीज़ें हमेशा एक लेटर लिखते वक्त हमें ध्यान देना चाहिए। सो इफेक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डेंस कहीं ना कहीं इस तरीके से काम करता है। इफेक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डेंस की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिकली हम जब भी कोई भी लेटर लिखते हैं तो ऐसा ऐसे एक स्पेसिफिक पर्पस के साथ लिखते हैं तो उस पर्पस का रिजल्ट हमें मिलना चाहिए। इस तरीके से हमारे लेटर को हमें केयरफुली लिखना है। सो इवन इफेक्टिव बिजनेस लेटर लिखने के लिए हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक मेंटेन अप करना पड़ता है, फॉलो अप करना पड़ता है ताकि इफेक्टिव बिजनेस करस्पॉन्डेंस हो पाए। सो व्हाट आर दैट कैरेक्टरिस्टिक दैट वी आर गोइंग टू सी इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर, बट ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आज का टॉपिक यहाँ तक रहेगा। सो लेट अस मूव ऑन विद द शॉर्ट समराइजेशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. Students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. So today we have seen the types of letter writing, the effective way of the portion of business letter, meaning of business letter, and the importance of the business letter in a very detailed manner. So now let us have a short summarization of the topic that we have seen today. So what we have seen today, अगर हम देखें तो आज हमने types of letter writing देखा. So letter writing की अगर हम बात करते तो importantly there are two types of letter writing in which we can say that the first is the formal and second is the informal. हम अगर business के related जब भी कोई letter लिखते हैं और उस letter के थ्रू हम communicate करने की कोशिश करते हैं, business को development करने की कोशिश करते हैं, या officially कोई government authority को या कोई complaint related हम कोई institution को कुछ लिखते हैं तो उसे कहीं ना कहीं जो है formal letter माना जाता है. So informal letter का मतलब जब भी हम कोई लेटर हमारे रिलेटिव्स को या किसी के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने के लिए जो लेटर लिखते हैं, उनकी पूछ खबर करना, उनको कॉन्ग्रेचुलेशन ग्रीट करना, उनको कोई उनका कुछ अच्छा दिन है तो उसको ग्रीटिंग देना, तो इस तरीके से कोई टॉपिक के ऊपर लिखते हैं तो उसे फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर माना जाता है. सो फॉर्मल लेटर मतलब जो बिजनेस और ऑफिशियल मैटर से लिखे जाए और इनफॉर्मल लेटर मतलब जो हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को लिखा जाए, तो इस पोर्शन को कहीं ना कहीं टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग में देखा जाता है. अब फॉर्मल लेटर की बात करें तो स्पेसिफिक इसका एक फॉर्मेट होता है जो हमें मेंटेन करना पड़ता है और कर्टसी ऑफ लैंग्वेज इसमें यूज करना पड़ता है, जबकि इनफॉर्मल लेटर में ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं होता है. उसमें हम कोई भी तरीके से अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ बात कर सकते हैं, बट हाँ अगर एल्डर हो तो रिस्पेक्टफुली बात करते हैं, बट फ्रेंड्स के साथ तो कोई भी तरीके से उसमें कोई बिना फॉर्मेट के हम इनफॉर्मल लेटर लिख सकते हैं. उसके बाद हमने उसके टाइप का चार्ट देखा था जिसमें ऑफिशियल लेटर और बिजनेस लेटर के बारे में डिटेल में दिया गया था. इवन वी हैव स्टडीड अप दैट इन अ वेरी डिटेल मैनर. एज आई सेड, अगर बिजनेस लेटर जो लिखा जाता है बिजनेस को एक्सपांड करने और डेवलप करने के मोटिव से लिखा जाए तो लेटर ऑफ इंक्वायरी, लेटर ऑफ ऑर्डर, सो लेटर ऑफ एनी एजेंसी इज बीन सीन अप इन द बिजनेस लेटर. और वही अगर हम जो है ऑफिशियल लेटर की बात करते हैं, एनी लेटर रिटर्न टू एनी इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट पोर्शन, लेटर ऑफ कंप्लेंट, लेटर ऑफ एप्लीकेशन, लेटर ऑफ वाटर प्रॉब्लम, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऑफिशियल लेटर माने जाते. आफ्टर दैट वी हैव सी द मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर. सो मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर की अगर हम बात करते हैं, यू नो दैट डे टू डे लाइफ में बिजनेस को करस्पॉन्डेंस के साथ रहना पड़ता है. बिजनेस में भी करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंटली काम करता है. सो बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें कहीं ना कहीं बिजनेस के अंदर करस्पॉन्डेंस रखना पड़ता है. उस करस्पॉन्डेंस को इफेक्टिव रखने के लिए हमें बिजनेस करस्पॉन्डेंस रखना पड़ता है. सो वी हैव सीन द बिजनेस लेटर्स मीनिंग. सो बिजनेस लेटर की मीनिंग बात करें तो बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें डे टू डे लाइफ में कॉन्स्टेंटली सबके साथ कांटेक्ट में रहना पड़ता है. एंड द वे ऑफ कॉन्टेक्टिंग इज लेटर राइटिंग इन द बिजनेस पोर्शन. तो बिजनेस में बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें कहीं ना कहीं बिजनेस लेटर को यूज करना पड़ता है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर? सो सबसे पहले बिजनेस के अंदर करस्पॉन्डेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. अगर करस्पॉन्डेंस ना हो तो कोई भी कंपनी या कोई भी बिजनेस जो है डेवलप नहीं हो सकता है. सो बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें कंटिन्यूअस करस्पॉन्डेंस रखना पड़ता है. उस करस्पॉन्डेंस को हम कमर्शियल करस्पॉन्डेंस बोलते हैं. कमर्शियल करस्पॉन्डेंस के अंदर द वे ऑफ राइटिंग एनीथिंग एंड डूइंग द कम्युनिकेशन इज कंसिडर एज द कमर्शियल कम्युनिकेशन और बिजनेस लेटर. सो बिजनेस लेटर का मतलब
जो भी लेटर बिजनेस को डेवलप करने के लिए और कॉन्स्टेंटली बिजनेस के एक्सपांडिंग के मोटिव से लिखा जाता है, जिसमें स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो अप किया जाए, स्पेसिफिक लैंग्वेज यूज किया जाए, उसे कहीं ना कहीं जो है बिजनेस लेटर माना जाता है। सो बिजनेस लेटर 1 to 1 इंडिविजुअल हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन का दूसरे इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, एक इंडिविजुअल का एक इंस्टीट्यूशन से हो सकता है। कहीं ना कहीं बिजनेस लेटर जो है एक पर्टिकुलर बिजनेस की इमेज क्रिएट करने में और प्रेस्टीज क्रिएट करने में हेल्प आउट करता है। सो ये था मीनिंग ऑफ बिजनेस लेटर। आफ्टर दैट इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस लेटर। इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस लेटर की अगर हम बात करते हैं, सो डे टू डे लाइफ में बिजनेस एक्टिविटी को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट यानी ग्रीवेंस, लोगों की कोई दुख, हमारी वजह से बिजनेस की वजह से कुछ दुख हुआ तो उसको सॉल्व अप करने के लिए, कस्टमर के दिमाग में हमारे रिलेटेड क्या पोर्शन है उसको जानने के लिए, चेंजिंग ट्रेंड में हमारे बिजनेस को टैकल करने के लिए हमें कंटिन्यूअस जो है बिजनेस करस्पॉन्डेंस यानी बिजनेस लेटर देखा जाता है। कहीं ना कहीं बिजनेस लेटर हमें चेंजिंग ट्रेंड के बारे में बताता है, हमारे प्रोडक्ट के सेल्स को इंक्रीज करता है, एक अच्छा रेपुटेशन बिजनेस का क्रिएट करता है। इस तरीके से बिजनेस लेटर जो है इंपॉर्टेंटली हमारे बिजनेस को डेवलप करने के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट माना जाता है। सो इन दिस सेंस द इंपॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस लेटर इज वेरी मच इफेक्टिव इन द डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस। सो आफ्टर दैट वी हैव सीन द पोर्शन ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ द इफेक्टिव लेटर राइटिंग। बिजनेस लेटर राइटिंग के बाद हमने डिटेल में क्या देखा, तो हमने ये देखा कि उसकी इफेक्टिवनेस कैसे हो सकती है, इफेक्टिवनेस ऑफ एनी बिजनेस लेटर। सो इफेक्टिवनेस ऑफ एनी बिजनेस लेटर की अगर हम बात करते तो उसकी इफेक्टिवनेस सिर्फ और सिर्फ 2-3 चीजों से ही जानी जा सकती है। सबसे पहले द वे ऑफ राइटिंग, द फॉर्मेट। अदर देन दैट कोई भी बिजनेस लेटर को इफेक्टिव बनाने के लिए सबसे पहले हमारा बिजनेस का जो मोटिव है वो उस लेटर के थ्रू होना चाहिए। इसीलिए हम कभी भी कोई लेटर को ड्राफ्ट करें तो उसको ड्राफ्ट करते वक्त हमें इतना कॉन्शियसली उसको ड्राफ्ट करना है क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। सो एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ बिजनेस एक बिजनेस लेटर काम करता है। सेल्स को इंक्रीज करना, एडवर्टाइजमेंट में अच्छा प्रोडक्ट को सेल्स में लाना, लोगों के बीच में एक अच्छा रिव्यू करना, कस्टमर के साथ अगर कोई बिजनेस मिसअंडरस्टैंडिंग तो उसके लिए एक लेटर लिखना, ऑर्डर्स के लिए, नेगोशिएशन के लिए, ये सारी चीजों के लिए बिजनेस लेटर्स देखी जाती है। इसलिए कहीं ना कहीं एक बिजनेस लेटर को इफेक्टिव होना चाहिए और उस हिसाब से ही उसको ड्राफ्ट करना चाहिए। बट एक लेटर को इफेक्टिव कैसे बनाया जा सकता है, उसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को हमें कैसे फॉलो अप करना है, उसके बारे में डिटेल फर्दर टॉपिक्स में दिए गए, जो कि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो आई होप दैट दिस वीडियो वाज एन इंटरेस्टिंग वीडियो फॉर यू ऑल। Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.